Dear students, Assalamu alaikum. As you know, we are reading short story Little Girl of English class 7th. Now start our remaining lesson. Lesson is sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो उसका बाप जब उसके कमरे में जाता है, छोटी बच्ची के कमरे में, तो उससे कहता है उठकर बैठो। वो उसे हुक्म देता है और अपने हाथ आगे करो। तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसे हाथ नहीं लगाना होता। लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए था। वो हकलाते हुए कहती है कि ये आपके जन्मदिन के लिए मैंने बनाया था। तो उसका बाप उसे कहता है, रूलर जो होता है वो उसके हाथ पर लगता है। रूलर नीचे आया और उसकी छोटी गुलाबी हथेली के ऊपर पड़ा। कुछ घंटे बाद जब दादी ने उसे शाल में लपेटा और झूले वाली कुर्सी में झुलाया तो बच्ची इसके मुलायम बदन के साथ चिपट गई। What did God made fathers for? She sobbed. Here is a clean hanky. Darling, blow your nose, go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो उसकी दादी उसे कहती है, बच्ची कहती है पहले अपनी दादी से, अल्लाह ने वालिद किस लिए बनाए थे? उसने सिसकी लेते हुए कहा। तो उसकी दादी उसे कहती है, मेरी जान, ये साफ रुमाल लो, अपनी नाक साफ करो, मेरी लाडो सो जाओ, सुबह तक तुम इस बारे में सब भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे अब्बू को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात वो बहुत परेशान था कि कुछ सुनने को तैयार नहीं था। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन बच्ची उसे कभी ना भूली। अगली बार जब उसने अपने बाप को देखा तो दोनों हाथ झट से अपनी पीठ की तरफ कर लिए और उसके गाल लाल हो गए। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ गई और वो और दादी अस्पताल चली गई। छोटी लड़की घर में एलिस नाम की बावर्चन के साथ अकेली रह गई। दिन के दौरान तो सब ठीक रहता था, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर लिटा रही थी तो वो अचानक डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई डरावना ख्वाब आ गया? उसने पूछा। मुझे अक्सर डरावने ख्वाब आते रहते हैं और तब दादी मुझे अपने बिस्तर में ले लेती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। वहाँ मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor papa. बच्ची तुम सिर्फ सो जाओ, एलिस ने उसकी जराबें उतारते हुए कहा। चलाकर तुम अपने बेचारे अब्बू को मत जगा देना। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer. Smiling that dreadful smile,
while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. "What is the matter?" he said. लेकिन उसने वही पुराना खौफनाक ख्वाब देखा, छुरा और रस्सी लिए हुए एक कसाई जो नज़दीक और नज़दीक आता जा रहा था, अपनी वही खौफनाक मुस्कुराहट लिए हुए, जबकि वो लड़की हिल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ खड़ी खड़ी चला ही रही थी। दादी माँ कांपते हुए वो जाग उठी और अपने वालिद को अपने बिस्तर के नज़दीक हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए पाया। उसके बाप ने पूछा, क्या बात है? "Oh, a butcher, a knife I want, Granny." He blew out the candle, bent down and caught up a half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully took up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. वाह, एक कसाई, एक छुरा, मुझे दादी माँ चाहिए। उसने मोमबत्ती बुझा दी, झुककर बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया और उसे बरामदे में से उठाए हुए सोने के कमरे में ले गया। बिस्तर पर एक अखबार पड़ा हुआ था। उसने अखबार एक तरफ हटा दिया, सिगार को अंगीठी में फेंक दिया और फिर एहतियात के साथ बच्ची को कपड़ों में ढक दिया और उसके पास लेट गया। वो अभी पूरी तरह सोई नहीं थी। ऐसा लगता था मानो अभी भी कसाई की मुस्कान उसकी आंखों में घूम रही थी। वो सरक कर उसके साथ लग गई, उसकी बाहों के नीचे अपना सर आराम से रख लिया और उसकी कमीज़ को कसकर पकड़ लिया। Then the dog did not matter. She lay still. "Here, rub your feet against my legs and get them warm," said father. अब अंधेरे की उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बिना हिले वहाँ लेटी रही। "सुनो, अपने तलुए मेरी टांगों के साथ रगड़ो और इन्हें गर्म कर लो," वालिद ने कहा। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her poor father, not so big after, and with no one to look after him. He was harder than the grandmother, but it was a nice handness, and every day he had to work and was too tired to play with her. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. "What is the matter?" asked father. "Another dream." "Oh," said the little girl, "my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear." तो बच्ची कहती है, थका हुआ होने की वजह से वो नन्ही लड़की से पहले ही सो गया। लड़की के दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा, बेचारा अबू, आखिर वो इतना मोटा ताज़ा नहीं है और उसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। वो दादी माँ से ज़्यादा सख्त बदन रखता है, लेकिन ये प्यार भरी सख्ती है और इसे हर रोज़ काम करना पड़ता है और वो इतना थक जाता है कि इसके साथ खेल नहीं सकता। उसने इसका पूरा खूबसूरती से लिखा हुआ काम फाड़ डाला था। वो अचानक हिली और एक गहरी सांस ली। "क्या बात है?" उसके वालिद ने पूछा। "क्या कोई और डरावना ख्वाब देखा है?" "वाह," नन्ही लड़की ने कहा, "मेरा सर आपके दिल के ऊपर है, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ। प्यारे अब्बू, आपका दिल कितना बड़ा है।" तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी
تو یہ آج ختم ہوگی، کل انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تھینک یو۔